कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। The Web3 conversation, which is what this conversation is about, is a bit like the online gaming conversation 6 months ago. So everybody accepts that it's a great thing, there's a great opportunity, especially for startups and young Indians. But what is the framework was not very clear. And now, for example, in online gaming, we've addressed that. Web3 has a peculiar issue where there is a lot of noise around Web3 and the risks of Web3. And you know that today, governments all around the world today are hypersensitive to which way the internet goes, what it represents in terms of new risks, whether the conversation is about AI, whether the conversation is about crypto. But these are legitimate because, in a sense, for the last 15 years, governments did not do anything to regulate big tech. And then we end up with the problems that we are in. And therefore, there is a general consensus, especially amongst democratic countries and like-minded nations, that all of this innovation should not be allowed to just proliferate without any guardrails or some do's and don'ts. So Web3, I can assure you today, India is going to be leading the charge on Web3. Startups from India are going to be leading the charge on Web3. During the DIA conversation, the Digital India Act conversation, the contours around the future of the internet also will become very clear. What are the risks that a distributed ledger, distributed internet represents for governments that seek to make sure that the internet is safe and trusted? What are the challenges to making sure accountability is there in this new model of the internet? What is there to make sure that the internet remains open and does not have a repeat of these big tech platforms? So those questions through the DIA consultation, I think you will find that the contours around Web3 and all of those all our startups who thinks Dubai is great to live in, or not paying any taxes in Dubai is great, or they'll all come back here. I'm fairly confident. जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर आपने वीडियो क्लिप के अंदर देख लिया जो सुमित गुप्ता जी ने सवाल किया था यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर जी से। सुमित गुप्ता मतलब कोइन DCX के फाउंडर ने यहाँ पर पूछा था क्रिप्टो मार्केट के बारे में, साथ ही साथ Web3 के बारे में। बट उसके रिप्लाई के अंदर राजीव चंद्रशेखर जी ने यहाँ पर एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया, पॉजिटिव बयान दिया Web3 के लिए, मेटावर्स के लिए और क्रिप्टो के लिए। उसका ये भी कहना है कि आज के काफ़ी ज़्यादा जो मैक्सिमम युवा है वो यहाँ पर Web3 की ओर जा रहे, टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे, मेटावर्स की ओर जा रहे। और यहाँ पर इसका ये भी कहना है कि थोड़ा रिस्क के बारे में भी यहाँ पर उसने मेंशन किया, बट पॉजिटिव आंसर दिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर चीज़ें जो आने वाले टाइम के अंदर है वो पॉजिटिव बनेगी। साथ साथ यहाँ पर राजीव जी का ये भी कहना है कि मैक्सिमम जो स्टार्टअप है इंडिया के अंदर थे वो ज़्यादा अब दुबई के अंदर शुरू हो गए। लास्ट में उसने बोला दुबई का नेम यहाँ पर लिया क्योंकि दुबई के अंदर उतना ज़्यादा टैक्स नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर टैक्स रिड्यूस किया जाए तो Web3 के स्टार्टअप यहाँ पर इंडिया के अंदर भी स्टार्ट हो सकते हैं। राजीव जी का ये भी कहना है कि इंटरनेट यूज़र्स 2022-23 के आंकड़े के मुताबिक 800 मिलियन जितने यूज़र्स यहाँ पर इंडिया के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। और उसने एक एनालिसिस और भी किया कि 900 मिलियन यूज़र इंडिया के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे 2025 के अंदर इंटरनेट यूज़र। अब इसके सामने मैं बताऊँ कि क्रिप्टो क्या चीज़ है। क्रिप्टो के बारे में बात करें वर्ल्ड वाइड तो 100 करोड़ मतलब कि 1 बिलियन यूज़र यहाँ पर एक्सचेंज का यूज करते हैं। मतलब इतने सारे यूज़र है क्रिप्टो के अंदर। अब अपना अकेला भारत के अंदर 800 मिलियन अभी हुआ है और यहाँ पर पहुँच गया है 1 बिलियन यूज़र्स यहाँ पर वर्ल्ड वाइड। तो कहे तो यहाँ पर जितने भारत के अंदर इंटरनेट यूज़ करते हैं उतने यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर, उससे ज़्यादा यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ चुके हैं। तो आप फिलहाल ये बता सकते हो कि 2025 तक ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँचेगा क्रिप्टो यूज़र्स का, फैल जाएगा पूरी दुनिया के अंदर मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर क्रिप्टो को तो एलो करना पड़ेगा क्योंकि उतने सारे यूज़र्स फिर बैन वगैरह किया तो आवाज़ उठा सकते। बैन की तो बात मेरे हिसाब से नहीं होगी, इसके अंदर रेगुलेशन आएगा। Web3 के लिए यहाँ पर पॉजिटिव का है राजीव चंद्रशेखर जी ने आपने वीडियो के अंदर देख लिया। तो ये था एक छोटा सा अपडेट। लास्ट में एक एप्लीकेशन में दिखाना चाहूँगा जो लोग यहाँ पर फ्यूचर स्टेट कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए काम की चीज़ है। लास्ट में यहाँ पर एक एक्सचेंज का नेम है फेयर डेस्क एक्सचेंज। हर दिन हम दिखाते हैं, 2-3 दिन में एक आध बार कवर करते हैं। एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग करते हैं। तो आप कॉपी कर सकते हो हमारे ट्रेड को। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जाना है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। फिर कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जाना है, ट्रेडर्स के अंदर जाना है। फिलहाल हमारा दूसरा नंबर यहाँ पर आ रहा है, टॉप के अंदर आ रहा है। अगर टॉप में नहीं आता है तो यहाँ पर आपको सागर लिखना है, सागर OCS ए वाला अपना अकाउंट है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हमारा लिमिट बढ़ गया है, 200 हो चुका है। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया यहाँ पर एक्सचेंज से, तो मेरा लिमिट यहाँ पर बढ़ा दिया है। पहले 60 था, अब यहाँ पर 68 लोग यहाँ पर फॉलो करें। ये प्रॉफिट
प्रॉफिट है, लास्ट थोड़े दिनों के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है लोगों का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर फॉलो करें। ये देखने के बाद एक्साइटेड नहीं होना है, हमसे भी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये मार्केट के अंदर चलता रहता है। एनालिसिस के मुताबिक ट्रेड करते हैं, हमारा ट्रेड लंबा लंबा चलता है। और हमारी एक और खासियत है कि जब तक ट्रेड बनता नहीं हम करते नहीं है, फिर भले 5 दिन लग जाए। तो यहाँ पर आप फॉलो करके छोटा मोटा अमाउंट लगा के छोड़ सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।